This journey basically started when we graduated from Quaid-e-Azam University, Islamabad, and we were friends from all over the Pakistan. We used to travel, being an anthropologist, we used to travel in different villages, और वहाँ पर जब हम we used to meet the families, we used to meet the students. उस वक्त ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐसे आइडियाज़ सामने आए, कुछ ऐसे बच्चे मिले जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी टू गेट द एजुकेशन, इस तरह की स्लेट्स. और these were the privileged children in the primary schools. These were the privileged children. Those have these slates, such an slates, which can bring injury to another children. और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि ये स्लेट्स उन बच्चों के पास थी जो वहाँ के प्रिविलेज्ड बच्चे थे. Otherwise, 90% children used to have an blackboard as an opportunity. तो उस वक्त ये सारा डिस्कशन फिर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऐसे हुई कि we could manage that all what we are doing. We are not doing anything extraordinary. This is what I want to admit. To think about your surroundings, to think about your friends, to think about your children is not something which is extraordinary. It is the normal thing. Whole world thinks like that. We are abnormal that we are not thinking for our surroundings, or we are thinking something differently. Like, I want my child to grow with the best clothes. I want my child to grow with the best meal. I want my child to get a best education. But if my child gets a best education, after the completing the education, shall or he or she shall stay in the village, or she or he will go to the out of the village? This was the discussion and it was the story. So we just wanted to be a very purposeful citizen. We don't want to be, CointheEducation does not want to be in any institution, any kind of big organization, but it wants to be very, very creative and purposeful council of common citizens. And we want to become an educational scholarship for the children of laborers, farmers, and orphan children in the villages. We want to be one of the best educational scholarship for the children in the primary level. And we are trying to be in a council of common citizens, and we are council of common citizens from all over the children, all over the Pakistan. Ada Tufail is sitting with me. He is a CointheEducation's family member and a part of the team. Sunil is sitting with me. So he is a CointheEducation. And we want all such a purposeful citizen to be the part of this family, and we are getting them into it. इस वक्त तक 3000 वो बच्चे जो कि प्राइमरी एजुकेशन भी अपनी इनरोल नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते, एक टूटे फूटे पब्लिक सेक्टर के स्कूल में भी वो नहीं कर सकते, दे आर इनरोल्ड विद अ CointheEducation. और वो मुख्तलिफ देहातों में है. And I want to admit one more thing. We have not done our journey. We are in the process of our journey. We have just conceived a fetus. We have just conceived it. And we are very much thankful to our family member that they have completed our first phase of the process, which is we have established a goodwill shop and secretariat and a workshop in the Hyderabad. Before that, we were struggling a lot, but it has took us into a second phase where we would be one of the best educational scholarship of Pakistan. इस वक्त तक हमने 8 मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स इनरोल किए या इस्टेब्लिश किए, सॉरी, और हर स्कॉलरशिप मुख्तलिफ देहातों में जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर रही है. लाइक द अप वन, इट इज़ एन स्कॉलरशिप स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक. एक मजदूर
जब अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू करता है तो उस बच्चे उसकी पढ़ाई के दौरान वो ये सोच रहा होता है कि इसको तो मैं प्राइमरी के बाद आगे नहीं पढ़ा सकता। जस्ट ब्रिंग इन योर माइंड कि एक मजदूर महीने के 30 दिन कमा रहा होता है और 30 दिनों में से 22 दिन कमा रहा होता है और 400 से लेके 600 रुपये उसकी रियलिटी है, इससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकता। 22 दिनों में 5 बच्चे की वो 400 रुपये में से खुराक प्रोवाइड करे, लिबास प्रोवाइड करे या अदर यूटिलिटीज प्रोवाइड करे, या हर 15 दिन के बाद वो उसको एक कॉपी पेंसिल रबड़ लेकर दे, तो वो कहाँ से मैनेज करे? और वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है। जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है और उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, द चाइल्ड हैज द राइट टू हैव एन स्कॉलरशिप। इट इज हिज एंड हर बेसिक राइट, like health is the basic right of every human. So ये हमारी एक स्कॉलरशिप है, स्कूल लीडिंग यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक हमारी अवार्ड है, टीचर्स अवार्ड है, एडॉप्ट एन स्कूल है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स है, राशन कार्ड फॉर एजुकेशन है, एंड द अंडरग्राउंड्स। And the another scholarship we have established, which is first time I think, and we have the information, it is the first time in the world. This is the Dr. Adib Rizvi 100 Library and Stationery Bank Scholarship. And this scholarship is like Dr. Adib Saab is the patron and chief of this scholarship. And this is the scholarship which has also established world's first mobile stationery bank. हमने जो पहली establish की है वो मोहनजोदड़ो के करीब एक गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल था। उसके अंदर हमने फर्स्ट डॉक्टर अदीब रिजवी लाइब्रेरी एंड स्टेशनरी बैंक इस्टेब्लिश की, जिसमें 44 बच्चों की कैपेसिटी है एट अ फर्स्ट वन टाइम, और ऑलमोस्ट 300 चिल्ड्रन एक्सेस टू इट। दिस वाज द बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन ऑफ द स्कूल एंड लाइब्रेरी स्पेस। दिस इज द चिल्ड्रन सेक्शन ऑफ द स्पेस, and anytime we have like a site value that don't tell us that we want to visit it, anytime you can go and visit it and you will feel very good. It's an environment like that. ये adult section है इसका, ये newspaper section है, और इस तरह की ये पहली library and stationery bank we established in February 2020. और उसके बाद we had 2 floods and this all space was damaged. But fortunately, with the support of all family members from all over Pakistan, we not only got it repaired, but we improved the facilities. This was the external side of the library and stationery bank, because it was in a primary school, but as the school facilities improved, तो हुआ ये कि मुख्तलिफ टीचर्स, मुख्तलिफ बच्चे, उनकी इनरोलमेंट बढ़ गई, और फर्स्ट टाइम दिस स्कूल गॉट इनटू अ सेकेंडरी क्लासेस। तो ये उसकी एक्सटर्नल साइट थी। फिर हमने वहाँ पे जो क्वाइंथ एजुकेशन के रजाकार थे, उन्होंने ये पूरा स्पेस इस स्कूल को डोनेट किया, और वी हैव नाउ अपग्रेडेड दिस फैसिलिटीज़। जो उनकी औताक थी, या जिसको आप ड्राइंग रूम कहें या डेरा कहें या हुजरा कहें, वो बेसिकली प्राइमरी क्लास रूम की शक्ल इख्तियार कर गया, और दो उसके सराउंडिंग्स है, यहाँ पर उसको हम मैच्योर कर रहे हैं। वहाँ पर ग्राउंड फैसिलिटीज़ हो, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, और अभी हमारी प्लानिंग्स हैं कि वी आर मूविंग इट विद अ फर्स्ट साइबर एंटरप्राइज कंप्यूटर लैब ऑल्सो। एंड दिस इज द स्टेशनरी बैंक, एंड द पीपल टोल्ड अस, पीपल टॉट अस हाउ वी प्रोसीड विद इट। तो इस तरह से एक स्टेशनरी बैंक का कॉन्सेप्ट आया सामने, और एक गवर्नेंस मैकेनिज्म दिया गया उस स्टेशनरी बैंक को, जिसके तहत स्टेशनरी रेगुलर बुनियादों पे बच्चों को अवार्ड होती है, और उसका पूरा डेटाबेस मैच्योर हो रहा होता है, और साइंटिफिकली वी आर प्लानिंग वेरी मच लाइक एजुकेशन रिसर्च इन द फ्यूचर, सो दैट इज लाइक आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव। सो वी आर मैनेजिंग ऑल दैट कि हम किस तरह से एजुकेशन में एज ए सिटीजन अपना किरदार अदा करें। तो ये पहली जब यहाँ से हमने एक्सपीरियंसेस गेन किए, और फिर इस तरह की टीचर्स से मिले। आपके पास ये भी कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में घोस्ट टीचर हैं, लेकिन मैं आपको
ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों टीचर से मुलाकात करवा सकते हैं हम आपकी, जिनमें से एक टीचर ये है जो कि एक पीर जेगोट के करीब एक छोटा सा गांव है सिकंदराबाद, जहां पर ये टीचर है। पूरी जिंदगी सुबह 6 बजे उठते, एक गांव है जहां पर सारे मजदूरों के बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने स्कूल तक मेक श्योर करते कि एवरी चाइल्ड गोज इन द स्कूल। इस तरह के स्कूलों को हमने आइडेंटिफाई किया और 23 स्कूल्स हमने आइडेंटिफाई किए फर्स्ट फेज में, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द दैट वी कुड enroll many children, बट इस तरह के स्कूलों तक जब हमें पहुंचने की जो है ना हमारी स्ट्रगल थी। डॉक्टर अदीब रिजवी जो फर्स्ट कैंपस है वहां पर तो लाइब्रेरी के अंदर स्टेशनरी भी मौजूद थी, लेकिन हम जब तक एक रोड अगर आप बनाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए 5 साल की आपकी फिजिबिलिटी चाहिए होती है। हमारे लिए स्ट्रगल ये थी कि हम दूसरे स्कूल तक कैसे पहुंचे, दूसरी स्पेसिस को बनाना, उनको मेंटेन रखना, ये एक अलग साइंस है, लेकिन हम दूसरे स्कूलों तक पहुंच सकते हैं, वो क्या करें। तो हमने डॉक्टर अदीब रिजवी मोबाइल स्टेशनरी बैंक का कॉन्सेप्ट कंसीव किया, एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल स्टेशनरी बैंक। सो डॉक्टर अदीब साहब ने खुद ही हम कराची में इसको इनाग्यूरेट किया। 23 स्कूल्स को हम विजिट कर रहे हैं। हर साल 28 स्टेशनरी आइटम्स 2022 से लेके 28 स्टेशनरी आइटम्स विच आर लाइक किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बेहतरीन स्कूल के बच्चों को जो स्टेशनरी मौजूद है वो आप इन 1700 बच्चों के पास स्टेशनरी थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होती है। कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये स्टेशनरी उनके पास अवेलेबल ना हो। अब इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हम किस तरह से इस मतलब है कि 3000 बच्चों के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, यू कैन इमेजिन। एवरेज प्राइमरी स्कूल चाइल्ड नीड्स लाइक 1200 to 1500 rupees every year if you buy stationery and other items from very wholesale markets. हैदराबाद रोज 3 टन स्क्रैप प्रोड्यूस करता है। इस वक्त तक हैदराबाद में अगर आप देखें कि ये स्क्रैप के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो आप एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस एवरी डे, अगर 2000 घर हम टारगेट रख रहे हैं कि उनसे हम चैनलाइज कर गए और करेंगे इंशाल्लाह, तो वी वुड हैव अ वंडरफुल स्कॉलरशिप। Not only the financial resources, but we would go in a recycling plant of the plastic, and the plastic recycling plant would turn into a provision of furnitures, provision of sleepers. एक बड़ी तादाद में हमने अपनी आंखों से बच्चे देखे जो 4-4 किलोमीटर 50 सेंटीग्रेड में ट्रेवल करते हैं और उनके पास स्लीपर नहीं होते। अब वो बच्चा अगले पूरे 6 माह अगर स्कूल आ रहा है और विदाउट स्लीपर आ रहा है और 50 सेंटीग्रेड में आ रहा है, तो वो बच्चा पढ़ना चाह रहा है। अगर उसको आखिर में वो थक के स्कूल से भाग जाता है, तो इट इज यू एंड मी who don't want him to or her in a school. So this is the future way forward कि हम स्क्रैप को किस तरह से रिसाइकलिंग करेंगे। लेकिन इस वक्त तक भी हम घरों से मुख्तलिफ जगहों से स्क्रैप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। And we are very happy that Hyderabad have given us a very positive response. The children come at the CointheEducation workshop regularly. They not only educate themselves about the scrap and dustbin habits and other things, but they spend time there and they volunteer their time to do the support work to the CointheEducation. So this is a purposeful citizenship also. The children are learning how to utilize the dustbin. So this is what we are moving towards in a process where we would have all the structured processes. But we, as I have told you earlier, that we have completed the first phase of our movement. By the time when I was in Islamabad, तो उस वक्त क्या होता था कि खैबर गाड़ी होती थी, उसमें मैं स्क्रैप को लोड करता था और घरों से उठाते रहते थे. Because our whole experiment phase is spent in Islamabad. उसके बाद हैदराबाद आए और हैदराबाद ने हमें इतनी सपोर्ट दी पूरे पाकिस्तान के दोस्तों से मिलके कि हमने अपनी स्क्रैप ट्रांसपोर्ट साइकिल मैच्योर कर लिए, जिसमें एक हमारी जो सप्लाई चेन में है चीज़ वो साइकिल स्क्रैपर है,
क्वाइंथ एजुकेशन के एक बाइक है हमारे पास इस वक्त और एक लोडर है, जिससे people call us and in a half an hour we move to the house and pick up the scrap. And we have matured certain governance mechanism that it is helping us to mature it more faster. उसके बाद जून जुलाई में एक ऐसा फेज आता है जहां पर 3 करोड़ तकरीबन नोटबुक्स 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में 2-2 करके उनके घरों में जाया हो जाते हैं। बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, उनकी फेयर कॉपीज, रफ कॉपीज वो जाया हो जाती हैं। वी हैव सो मेनी फंड रेजिंग मेथड्स विच वी हैव आइडेंटिफाइड, बट एज द टाइम गोज ऑन we are maturing this logistic and supply chain and we are initiating the process of fundraising mechanisms. ये पाकिस्तान में एक ऐसी fundraising opportunity है जो आपके लाखों दरख्तों को कटने से बचा सकती है, और लाखों दरख्तों का कटना अगर बचा गए हम तो you know more than better than me that how it would respect the mother nature. और दूसरी चीज, ये वाइट पेपर, यूज्ड पेपर को, इस्तेमाल शुदा पेपर को रिसाइकिल करके नए पेपर में टर्न अराउंड करना इतना आसान है कि आपकी सोच है। लेकिन इस वक्त हमने इनिशिएट कर दिया है और वी आर डेवलपिंग इन अ कोरियर सिस्टम दैट वी आर डेवलपिंग इन अ डेटाबेस ऑफ द हाउस होल्ड्स वेयर द चिल्ड्रन आर इन स्कूल्स, और हम जून जुलाई और थ्रू आउट द ईयर उनसे पिकअप कर रहे होते हैं। और राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वो बच्चे जिनके पास रफ कॉपीज नहीं है, आपकी इस तरह की रद्दी की डोनेशन से एक एक पेपर निकाल के हम उनके लिए रफ कॉपीज बना रहे हैं पेपर में से। ये जो प्लास्टिक है जो आप स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को असाइनमेंट्स जमा कराते हैं, तो ये टीचर्स ने हमें वो असाइनमेंट्स दिए, तो ये प्लास्टिक हमने इनका कवर पेज यूज़ कर लिया है, और ये स्टिकर हमें सिर्फ नया यूज़ किया है कि टू शेयर वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। What we want to tell you and what is our objective? We just want all you friends to be purposeful. We just all want कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी स्कॉलरशिप इस्टेब्लिश करके जाएं जो मज़दूरों और किसानों के बच्चे जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं उनके लिए एक वर्ड है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड वो बराबर होनी चाहिए। एंड वी शुड, डॉक्टर अदीब साहब से एक बात हुई, उन्होंने कहा कि बच्चे एक चीज़ याद रखनी है, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते अगर हम अपने बारे में सिर्फ सोचें और अपने बच्चों के बारे में सोचें। हम अपने बच्चों के बारे में तब खुश रह सकेंगे जब वो घर से निकले और वो सेफ हो, अच्छे तरीके से हो, अच्छे इन्वायरमेंट में हो, अच्छी सोसाइटी में हो, then it becomes happier for everyone. The second thing, when we used to travel in different countries, भूटान इतना सा मुल्क है, इतना सा, और उसकी जीडीपी नहीं है, उसकी जीएनएच है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। वो अपनी जीडीपी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे बनाते हैं कि वहाँ उनकी स्टेट ये कहती है कि कितने % लोग हमारे खुश हैं, इस बुनियाद पे वो अपनी मुल्क की प्लानिंग करते हैं। और हैप्पीनेस डज नॉट कम्स फ्रॉम मटेरियल, इट कम्स फ्रॉम स्पिरिट, एंड स्पिरिट इज शेयर्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर यू ऑल द थिंग्स।